I welcome all of you this evening. और आज की शाम में आप सबका स्वागत करता So हूँ। let's welcome the person sitting next to you. अपने बगल वाले का स्वागत करें Let's tell them you're welcome in the house of the Lord. और उनसे कहे कि परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। Surely the Lord will bless you this evening. और निश्चय ही आज आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। And we can be seated in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब बैठ सकते हैं। So I'm sure you'll find the word for this evening very interesting. और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन है उसको आप बहुत ही रोचक पाएंगे Hallelujah. And it is going to bless you. और निश्चय ही वो आपको आशीषित करेगा। So our God is a God of precision. और हमारा जो परमेश्वर है वो उदाहरण स्थापित करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. He is very accurate with his words. और वो अपने वचन के साथ बहुत ही सटीक है। Whatever he says comes to pass. और वो जो कुछ भी वो कहता है वो निश्चय ही पूरा होता है। The word of God says और परमेश्वर का वचन यह कहता है that the heavens and the earth can pass away, कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, but the Lord's word is established forever. लेकिन परमेश्वर का वचन वो कभी भी नहीं टलेगा। Hallelujah. So whatever we see can pass away. तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो टल जाएगा। The creation can pass away, ये सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी, but the Lord's word will stay forever. लेकिन परमेश्वर का वचन वो हमेशा के लिए है। It comes to pass to the letter. और वो उसका हर एक अक्षर वो पूरा होता है। Now I want you to imagine और मैं चाहता हूँ कि आप सोचें a vast army एक बहुत बड़ी सेना that has come to challenge the people of God. जो परमेश्वर के लोगों के सामने वो चुनौती लेकर के आई है। The word of God tells us प्रभु का वचन यह कहता है that the Philistine army, कि फलिस्ती की सेना along with other nations, अन्य देशों के साथ had surrounded Israel, वो इज़राइल को घेर लेते हैं and their numbers were great. और वो बहुत ही बड़ी संख्या में थे। And from that army, और उस सेना में से one giant will come out. एक दानव वो निकल कर आएगा। His name was Goliath. उसका नाम गोलियत है He was very huge. और वो बहुत ही विशाल था। He used to come and challenge the armies of the living God. और वो आता था और जो परमेश्वर की जो सेना है उसको वो ललकारता था And he would tell them, और उनसे कहता था send out your champion. कि अपने सबसे महान योद्धा को मेरे पास Send भेजो। out your champion. अपने champion को भेजो. Hallelujah. हालेलुया। Send out your champion. अपने चैंपियन को, सबसे महान योद्धा को मेरे पास भेजो। And if he defeats me, और अगर वो मुझे हरा देता है we all will be your slaves. तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन If जाएंगे। he defeats me, अगर वो मुझे हरा देता है it would be like our whole army has been defeated. तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी सारी सेना वो परास्त हो गई है। So only he is going to fight. तो केवल वही वो लड़ाई करेगा And I am going to fight. और मैं लड़ूंगा। But if he wins, पर अगर वो जीतता है all of you will win. तो तुम सब जीत जाओगे। But if he loses, लेकिन अगर वो हार गया you all will be our slaves. तो तुम सब हमारे गुलाम बन जाओगे। Now this was not a normal human being. अब ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। He was a Nephilim. वो एक दानव था, नेफिलम था। Hallelujah. Now, what are giants? और ये दानव होते क्या है? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So we will look at the history of giants today. और आज हम दानव के इतिहास की तरफ देखेंगे। But let's come back to the story. और कहानी में वापस आते हैं। So when this giant is challenging the armies of God, और जब ये दानव वो परमेश्वर की सेना को वो ललकारता है, all the mighty warriors of Israel are shaking. जितने भी सामर्थ्य योद्धा है इज़राइल के वो डर से कांप रहे होते हैं। Nobody has the courage to face this giant. किसी के पास इतना वो हियाव नहीं रहता है कि वो दानव का सामना करे। Hallelujah. Maybe there is a situation which is challenging you today. हो सकता है आज आप शाम में आपके जीवन में कोई परिस्थिति है जो आपको चुनौती दे रही है। Maybe there are certain
issues which are challenging you today. हो सकता है कुछ परिस्थितियां हैं जो आज आपको वो ललकार रही, चुनौती दे रही है। And truly, we all are facing our own giants. और सही में हम सब अपने अपने दानों का आमना सामना कर रहे You know, हैं। those giants are standing between us and our blessings. वो दानव हमारे और हमारे आशीषों के बीच में खड़ा है, Just like Goliath. बिल्कुल गोलियत की तरह। Nobody has the courage to face Goliath. और किसी के पास इतना हियाव नहीं था कि वो गोलियत का सामना करे। Saul, who is a mighty warrior, शाऊल जो कि एक महान योद्धा था, who is a mighty king, जो कि एक महान राजा था, he does not have the courage to go and face this Goliath. उसके पास भी इतना वो शक्ति नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी कि वो उस दानव का सामना कर सके। His son Jonathan. और उसका बेटा जुनाथन, Jonathan himself is a mighty warrior. और जुनाथन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो महान योद्धा है। The Bible tells us बाइबल हमें बतलाती है that Jonathan, along with his assistant, had defeated an entire Philistine army. कि जुनाथन अपने असिस्टेंट के साथ वो पूरे पलिस्ती की सेना को वो हराता है। Alone with his assistant. वो अकेले अपने असिस्टेंट के साथ वो हरा देता है, You know, he defeated the entire army. और वो पूरे सेना को वो हरा देता है। But when this Goliath comes to challenge them, लेकिन जब गोलियत उसको चुनौती देने के लिए आता है, even Jonathan does not have the courage to go up and face him. जुनाथन के पास भी वो हिम्मत नहीं रहती कि वो उसका सामना कर सके। And in that battlefield, और उस युद्ध के क्षेत्र में a young teenager comes up. एक टीनेजर जो है, एक हाँ। बच्चा जो है वो आता है, A young boy comes up. एक बहुत ही जो बच्चा है वो आता है, And he says, who is this giant who is challenging the armies of the living God? और ये वो कहता है कि वो कौन दानव है, ये कौन सा दानव है जो प्रभु के जीवित प्रभु के सेना को ललकारता है। In the name of the living God, जीवित खुदा के नाम से hallelujah, I'm going to defeat this giant today. मैं इस दानव को हरा दूंगा। Now think about this giant standing there. अब उस दानव को सोचे जो वहां पे खड़ा था, And this young boy standing up to face him. और ये बच्चा वो जा करके उसका सामना करता है। His name is David. उसका नाम दाऊद है, Goliath is the champion of the enemy. और जो गोलियत है वो शत्रु का जो है वो सबसे महान योद्धा है, वो चैंपियन है। Hallelujah. And David is the champion of the Lord. और दाऊद जो है वो परमेश्वर का चैंपियन है। Hallelujah. Now, if you happen to witness this battle, अगर आप इस युद्ध को देख पाते, you know, the people of Israel must be holding their heads in despair. तो जितने भी इजरायली हैं वो अपने सर पकड़ करके बैठे हुए होते। They would be saying, what is this shepherd boy going to do? वो कहते हैं कि यह छोटा सा चरवाहा क्या कर लेगा। Hallelujah. He does not have a sword. उसके पास तो तलवार भी नहीं He है, does not have an armor. उसके पास तो सुरक्षा की कवच भी नहीं है। Hallelujah. He's just going to fight this giant with a stick. वो बस जाएगा और उस दानव को एक छड़ी से उसका सामना करेगा, This giant is going to rip him apart. और यह दानव तो उसको फाड़ के खा जाएगा। Hallelujah. Goliath is mighty. और जो गोलियत है वो बहुत ही शक्तिशाली, वो विशाल है, Hallelujah. He is very tall. वो बहुत ही ऊंचा है, He looks very muscular. और वो कद काठी में बहुत ही चौड़ा है। Hallelujah. So the people of Israel, they are thinking that surely we are going to lose this battle. तो इजरायली जो है वो सोचते हैं कि निश्चय हम इस युद्ध को हार जाएंगे। But one thing that the people of Israel do not know, लेकिन एक चीज है जो इजरायली नहीं जानते हैं, that the Spirit of the Lord was resting on David. कि प्रभु की आत्मा वो दाऊद के ऊपर ठहरी हुई थी। That is why when all the people were shaking in fear, इसलिए जब बाकी सारे लोग वो डर से कांप रहे थे, David stood up and said, who is this giant who is challenging the mighty, the Lord of hosts? वो दाऊद जो है वो खड़ा होकर के बोलता है, वह कौन है, ये दानव कौन है जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। A few days back we celebrated Good Friday, और कुछ दिन पहले हमने भला शुक्रवार को मनाया, and we saw how Jesus hung on the cross for us. और हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटक गए। Now, this event which is happening in the battlefields,
अब ये घटना जो कि युद्ध के क्षेत्र में हो रही है, is directly connected to the cross of Jesus. वो सीधे तौर पर वो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटक गए उससे वो कनेक्टेड है, And that event is directly connected with our salvation. और वह घटना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे उद्धार के साथ। Hallelujah. You know, what is the history of giants? दानव का इतिहास क्या है? We hear about them in all the world cultures. हम विश्व के हर एक कल्चर में उसके बारे में पढ़ते हैं। We hear about these mighty people who had supernatural strength. और हम पढ़ते हैं इन लोगों के विषय में जिसके पास अलौकिक शक्तियां रही हैं, It seemed as if they were gods on this earth. और ऐसा लगता था कि मानो वो इस धरती के के जो है ईश्वर है। Hallelujah. इस धरती पे देवता के जैसे उन लोग थे, उन लोग अलौकिक थे, उनकी सामर्थ्य अलौकिक थी। ये लोग कौन थे जिनके विषय में हम सुनते हैं? To understand this, we have to go to the very beginning. और इसको समझने के लिए हमें बहुत ही आगे जाना होगा। We go to the book of Genesis chapter 3 verse 15. हम चले उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 15 वर्ष में। And it says, and I will put enmity between you and the woman. और ये कहता है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे और स्त्री के बीच में तेरे गर्भ के फल और स्त्री के गर्भ के फल के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? जब शैतान को पाप में गिराया तो परमेश्वर ने शैतान के ऊपर दंड की आज्ञा की और आदम और हवा के ऊपर दंड की आज्ञा की, पर उसी के साथ परमेश्वर ने उद्धारकर्ता के आने की पहली भविष्यवाणी की। हालेलुया। दिस वाज द फर्स्ट प्रोफेसी अबाउट द कमिंग मसाया। और ये पहली भविष्यवाणी थी कि एक उद्धारकर्ता वो आने वाला है। एंड द गॉड सेड टू द सर्पेंट, और परमेश्वर ने उस सर्प से कहा, that I will put enmity between you and the woman, between the seed of the woman and your seed. कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे गर्भ के फल और उसके गर्भ के फल के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा। It shall bruise thy head, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, and thou shalt bruise his heel. और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। वो तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलने के लिए क्या होता है? आपको ऊपर होना है, और वो तेरी एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसने के लिए आपको नीचे होना है। हालेलुया। So Satan heard this. और शत्रु ने इसको सुना। He heard that the seed of the woman, और उसने सुना कि इस स्त्री का जो गर्भ का फल, हालेलुया, the bloodline of humans, और जो मनुष्य जाति है उसका ब्लड लाइन, जो मनुष्यों की जाति है, उनका जो वंश है, हालेलुया, वो शैतान के सर को कुचल देगा। हालेलुया। Okay. Praise the Lord. We are just getting started. So Satan said, तो शत्रु ने कहा, I will eradicate humankind from this earth. कि मैं इस धरती से पूरे मनुष्य जाति को मिटा डालूंगा। What I will do is, और मैं क्या करूंगा? I will send the angels which have fallen with me. तो मैं उन स्वर्गदूतों को जो मेरे साथ गिराए गए उनको भेजूंगा। And they will go to the daughters of man. और वो मनुष्य के जो बेटियां हैं उनके पास जाएंगे। And these angels who are heavenly beings, और ये स्वर्गदूत जो स्वर्गीय हैं, they have supernatural wisdom, जिनके पास अलौकिक क्षमता है समझने की, and they have supernatural charm, और उनके पास अलौकिक चार्म है, and they are very mighty, और वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। they will go to the daughters of women, वो उन स्त्रियों की बेटियों के पास जाएंगे, hallelujah, and they will marry them, और उनसे विवाह करेंगे, they will have children from them, और उनसे वंश उत्पन्न करेंगे। and now those children, they will continue to marry the daughters of women. और वो जो बच्चे हैं, वो जो वंश उत्पन्न होगा, वो आगे भी
अन्य से विवाह करते रहेंगे। Hallelujah. But the children that will be born, लेकिन जो बच्चे वो उत्पन्न होंगे, they will neither be humans nor will they be angels. ना वो मनुष्य होंगे और ना वो स्वर्गदूत होंगे, They will be some kind of a hybrid. और वो एक तरह से दोनों के का मिक्सचर होंगे। In that way, the bloodline of humans will be corrupted. और इस तरह से मनुष्य के जो वंश है वो करप्ट हो जाएंगे, Because the Messiah is going to come from the bloodline of humans. क्योंकि जो उद्धारकर्ता आने वाला है वो मनुष्य के वंश से आएगा। But if there are no humans there, only hybrids, लेकिन- from where will the Messiah come? लेकिन अगर मनुष्य नहीं होंगे और जो ये जो Hybrids. हाइब्रिड्स है, जो भ्रष्ट वंश है वो आएंगे, तो उद्धारकर्ता का जन्म माना भी जो है तो वो पूरा नहीं होगा। So the word of God tells us, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, let's go to Genesis chapter 6 verse 2. उत्पत्ति 6:2, Whatever we preach, it is important to back it up from the word of God. जो कुछ भी हम यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं वो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ उसकी तुलना करें। Hallelujah. So हर एक वचन को हर एक प्रचार जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के पुत्रों ने तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा मनुष्यों कि की वे पुत्री सुंदर को हैं। देखा कि वो सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। उनसे ब्याह किया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना 4 रहेगा। पद से पढ़े। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। तो ये जो दानव है ये कौन है? The offspring of angelic beings and women were giants of the old. जितने भी बच्चे वो जो स्वर्गदूत और जो स्वर्गदूत गिराए गए थे और जो स्त्रियां थी उनके बच्चे वो दानव थे। They were giants. Hallelujah. And what does the Bible say? What was their nature? Let's read from Genesis chapter 6 verse 4. उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। So they were mighty men. तो ये बहुत ही सामर्थी लोग थे। Hallelujah. And they were renowned. और वो बहुत ही प्रख्यात थे। Why did God send flood in the times of Noah? और परमेश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय क्यों भेजा? Why was Noah counted righteous and the others were counted unrighteous? नूह को क्यों धर्मी जाना गया और बाकियों को अधर्मी माना गया? Why was God so cruel that he killed everyone on this earth except for the family of Noah? और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्रूरता क्यों किया कि नूह को बचा लिया, उसके घराने को बचा लिया और बाकी सबको नष्ट कर दिया? What does the Bible mean when it says that when God looked at the earth, only Noah was righteous, all the others were found to be unrighteous? और इसका अर्थ क्या है जब बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर धरती की ओर देखे तो केवल नूह को धर्मी पाया और बाकी को अधर्मी? You know, at that time, क्या आपको पता है कि उस वक्त the bloodlines of all the other families had been corrupted. जितने भी बाकी परिवार थे उनका जो वंश था, वंशावली, वो भ्रष्ट हो चुका था। Only Noah and his family's bloodline was pure. केवल नूह और उसके घराने का जो वंश था वो सही था। That is why God had to take such a hard decision. इसीलिए परमेश्वर को ये निश्चय लेना पड़ा That he wiped out all the beings from this earth. कि उन्होंने बाकी सबको इस धरती से मिटा डाला। So at that time, this problem of giants on this earth was largely solved. तो उस वक्त ये जो दानव की जो समस्या थी वो एक तरीके से वो मिट गई थी। But this thing continued to happen in history. लेकिन इतिहास में ये जो चीज है, ये घटना जो है तो वो चलती चली We गई। read about it again in the book of Joshua. और फिर यहोशू की किताब में हम फिर से इसके विषय में पढ़ते हैं। If we go to Numbers chapter 13 verse 33, हम अगर गिनती की किताब 13-33 पढ़ें, so when God sent Joshua and the other spies in the promised land, तो जब परमेश्वर ने यहोशू और अन्य को गुप्तचरों को जो है तो उस वायदे की भूमि में भेजा, what they witnessed there was very frightening. और जो उन्होंने देखा वो बहुत ही डरावना था।
they saw that the promised land was a land of blessings. उन्होंने देखा कि जो वायदे की भूमि थी वो आशीषों की भूमि थी। It was a land of milk and honey. वहाँ दूध और मधु की धारा बह रही थी। The harvest of that land was very good and plentiful. और वहाँ की जो फसल है वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी थी। But it was not empty. लेकिन वो खाली नहीं थी। Hallelujah. See, the blessings are there, आशीषें तो होगी, but it will not be served to you on a platter. वो आपके सामने यूं ही परोस नहीं दी You will जाएगी। have to fight for every blessing. आपको अपने आशीषों के लिए युद्ध करना होगा। Hallelujah. The word of God tells us, परमेश्वर का वचन यह कहता है put on the whole armor of God. कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। Who wears an armor? और कौन उस हथियारों को बांधता है, सुरक्षा कवच को बांधता है? Is it a plumber who wears an armor? क्या एक प्लम्बर जो है वो अपने सुरक्षा कवच को पहनता है? You called a plumber to fix your tap. आप प्लम्बर को बुलाते हैं ताकि आपके नल को वो ठीक करे। He's coming with a helmet, वो हेलमेट में आ रहा है a whole breastplate, और पूरे कवच पहन के आ रहा है, guns. और वो गन्स पकड़ के आ रहे हैं, तलवार पकड़ के आ रहे हैं। Plumbers do not need armor. और प्लम्बर को वो सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है। Hallelujah. If he comes like that, nobody will want to work with him. और अगर वो ऐसे आ जाए तो कोई भी उसको काम पे नहीं रखेगा। Praise the Lord. Do farmers need an armor? क्या जो किसान है उनको जरूरत होती है सुरक्षा कवच की? If farmers wear an armor and go to work in their fields, क्या किसान सुरक्षा कवच पहन करके अपने खेतों में खेती करने जाते हैं? they will not be able to do that. तो वो अपने कार्यों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। Do teachers wear an armor? क्या शिक्षक वो अपने सुरक्षा कवच को पहनते हैं? My wife is a teacher. मेरी Hallelujah. वाइफ जो है वो एक शिक्षक Just imagine शिक्षिका she है। going to her classroom wearing whole armor, और सोचिए कि वो अपने क्लासरूम में जा रही है अपने पूरे सुरक्षा कवच को पहन shield करके and a sword and everything. और अपने हाथों में हथियार और तलवार लेकर के, All the children will run away. तो सारे बच्चे वो भाग जाएंगे We will have complaints from the parents. और जो अभिभावक है वो कंप्लेंट्स करेंगे। Hallelujah. Forget about the doctor wearing an armor. You will not go to get treated to a doctor. और डॉक्टर अगर सुरक्षा कवच पहनने लगे तो उसके बारे में भूल ही जाइए। Hallelujah. But the word of God tells us, लेकिन प्रभु का वचन यह कहता है wear the whole armor of God. कि परमेश्वर के सारे सुरक्षा कवच को पहन Ask लो। yourself this evening, और आज की शाम अपने आप से पूछें who wears an armor? कि वो सुरक्षा कवच कौन पहनता It is है? not normal people. वो सामान्य लोग नहीं पहनते हैं, Only warriors wear an armor. केवल योद्धा उसे पहनते हैं। So when the word of God tells you, तो परमेश्वर का वचन जब आपसे कहता wear है the whole armor of कि God, आपने परमेश्वर के सारे सुरक्षा कवच को पहन लो, the Bible is telling you तो बाइबल आपको बतला रही है that you are a कि warrior. आप एक योद्धा है। Be ready to fight. तैयार हो जाइए युद्ध में Have the उतरने के warrior लिए। mentality. अपना एक मेंटालिटी रखिए एक योद्धा Hallelujah. का। Don't just give up at the slightest challenge. छोटी सी परिस्थिति में हार मत मान जाइए। You know, a small situation comes up एक छोटी सी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाती है and you put your hands up और आप हार मान जाते हैं and you say, मेरे से नहीं होएगा. और आप कहते हैं कि मुझसे ना होगा। That is not the warrior mentality. एक योद्धा की मानसिकता ऐसी नहीं होती। You know, all the Israelite army, they were trembling इजराइल की जो सेना थी वो डर से भय से कांप रहे थे and they were running away from Goliath. और वो गोलियत से भाग रहे थे। But David, who had the anointing of the Lord, लेकिन दाऊद जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, when he saw the challenge, जब उसने चुनौती को देखा he said, it is time for promotion. तो उसने बोला कि प्रमोशन का वक्त आ गया है। Hallelujah. दाऊद बोलने लगा, ये गोलियत इसको छोड़ो, इसको हराने के बाद क्या मिलेगा वो मेरे को बताओ. हालेलुया। And when people were running away from Goliath, और जब बाकी लोग वो गोलियत से दूर भाग रहे थे, David was running towards Goliath to defeat दाऊद him. उसकी तरफ भाग रहा था उसको हराने के He लिए। was confident that I will defeat him in the strength of the Lord. वो हियाव से भरा हुआ था कि परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं उसे हरा दूंगा। He did not have any physical armor, उसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था, but he had the spiritual armor of the anointing. लेकिन उसके पास अभिषेक का आत्मिक कवच था And that is what is important. और वही महत्वपूर्ण है। If you have the anointing of the Holy Spirit on you, अगर
आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, you will defeat every Goliath in your life. तो आप अपने जीवन के हर एक गोलियत को हरा दीजिएगा। The word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है that we are more than conquerors in Christ Jesus. कि हम यीशु मसीह में हम विजय पाने से जयवंत से जयवंत बढ़ से के। भी ज्यादा है। Hallelujah. हालेलुया। So, when the spies went into the promised land, तो जितने भी गुप्तचर जब वो उस आशीष वायदे के वचन के भूमि पर जाते हैं, they saw that there were giants there तो उन्होंने देखा कि वहां पर दानव हैं, occupying that territory. वो उस पूरे क्षेत्र को उसमें वो भरे हुए थे। Let's read Numbers chapter 13 verse 33. फिर हमने वहाँ नपीलों को हाँ। अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा हाँ। और हम अपनी दृष्टि में तो उनके अनाक वंशी सामने नेफिलिम, वहां पर हमने अनाक वंशियों को देखा और हम उनके सामने अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे। जरा सोचे कि वो कितने विशाल थे। So this tells me तो ये मुझे बतलाता है that after the flood of Noah, कि नूह के समय में जो जल प्रलय आया, hallelujah, there were still giants on the earth. उसके बाद भी दानव इस धरती पे थे And there was a fight going on, और एक युद्ध चल रहा था which is the fight for our salvation. जो कि हमारे उद्धार के लिए युद्ध था। It was a fight to make the way for the Messiah to come into this world. और वो युद्ध था ताकि जो इस संसार का उद्धार करता है वो इस धरती पर आ सके। Hallelujah. So Joshua killed a lot of giants. तो यहोशू ने बहुत सारे दानवों को मारा। The armies of Israel cleared a lot of giants. और इजरायली सेना ने बहुत सारे दानवों को मारा। But then we hear about a giant and his brothers which were left. लेकिन उसके बाद हम सुनते हैं एक दानव और उसके भाई जो बच गए थे। So we know about the seed of the woman. तो हम जानते हैं स्त्री के गर्भ के फल के विषय में, Those are human beings. वो हम मनुष्य हैं। Hallelujah. But what is the seed of Satan? लेकिन शैतान के गर्भ का फल वो क्या है? Hallelujah. उसके विषय में हम उत्पत्ति में देखते हैं कि शैतान का जो वंश है वो स्त्री के वंश के विरुद्ध रहेगा। तो शैतान का वंश कौन है? ये वो दानव थे जिसके विषय में बात की जा रही है। कितनों को समझ में आ रहा है? Hallelujah. So now Goliath and his brothers. अब गोलियत और उसके भाई, How many brothers did Goliath have? उसके कितने भाई थे? 5. 5। 4 brothers. 4 भाई। And along with Goliath, there were 5 brothers. गोलियत को मिला करके 5 भाई थे। You know, when David went to the stream to pick up stones, जब दाऊद वो नहर के किनारे जाता है पत्थरों को उठाने के लिए, how many stones did he pick up? वो कितने पत्थरों को उठाता है? He picked up 5 stones. वो 5 पत्थरों को उठाता है। Not because if I miss once, I will have 4 more chances. इसलिए नहीं कि अगर मैं एक बार मिस कर जाऊं तो मेरे पास 4 और चांस He रहेंगे। was confident that in the anointing of the Lord, every stone will go like a missile and hit its mark. वो निश्चित था कि अगर पहला जो है तो वो गोलियत को मारेगा और बाकी 4 से वो उनके भाइयों को मारेगा। Hallelujah. 5 पत्थर उठाए कि गोलियत को तो मैं निपट लूंगा, अगर उसके भाई भी आएंगे ना तो उन सबको मैं प्रभु के नाम में ढेर कर दूंगा। What a confidence did Goliath have? क्या हिम्मत थी गोलियत The armies दाऊद of के पास। Israel were not able to handle one giant, जो इजराइल की सेना थी वो एक दानव को नहीं संभाल पा रहे थे and Goliath and David alone was ready to handle 5 giants. और दाऊद अकेले ही वो 5 दानवों का सामना करने के लिए तैयार था। I pray that confidence and that anointing comes upon you this और evening. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज की शाम वही अभिषेक और हियाव आप पर ठहर That जाए you're no longer worried about the challenges in your life. और आप अपने जीवन की किसी भी चुनौतियों के विषय में आप चिंता ना And करें। by the end of this sermon, और इस प्रचार के अंत होने I तक will give you a good reason why you can operate in that confidence. और मैं आपको एक बहुत अच्छा कारण दूंगा कि आप उस हियाव में कैसे आपको क्यों चलना है। Hallelujah. So what did David do? तो दाऊद ने क्या किया? He took his sling and defeated Goliath.
वो अपने गुलेल को लेता है और उससे वो उस दानव का वो वध कर देता है। Hallelujah. And when Goliath is lying down on the battlefield, और जब गोलियत जो है वो उस युद्ध की भूमि में वो पड़ा हुआ था, David goes, takes Goliath's sword and cuts off his head. दाऊद जाता है गोलियत के ही तलवार से उसके सर को वो अलग कर देता है। Praise the Lord. You know the story, what happened after that? क्या आपको पता है कहानी कि उसके बाद क्या होता है? David was immediately promoted as the captain of Saul's armies. दाऊद को तुरंत ही प्रोन्नति मिल जाती है, साउल के जो सेना है उसमें वो अधिकारी बन जाता है। वो सेनापति बन जाता है। And Saul's daughter, the princess, is married to David. और साउल की जो बेटी रहती है उसकी शादी दाऊद के साथ कर दी जाती What है। was David before defeating Goliath? और दाऊद वो गोलियत को हराने से पहले क्या था? He was just an unknown shepherd. वो एक चरवाहा था जिसको कोई नहीं जानता था। What happened after he defeated Goliath? और गोलियत को मारने के बाद क्या होता है? He became the captain whom everybody knew. वो एक सेनापति बन जाता है जिसको हर कोई जानता है। He became a royal person from और the royal household. वो शाही बन जाता है, एक शाही घराने का। Hallelujah. Run towards your challenges to defeat them. अपने चुनौतियों की ओर दौड़े और उनको परास्त करे। Hallelujah. We are not called to run away. We are called to conquer. हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम अपने चुनौतियों से दूर भागे, लेकिन हमें उसके ऊपर विजय पाना है। Hallelujah. Then David took the head of Goliath. फिर दाऊद वो गोलियत का वो सर को, वो कटे हुए सर को उठाता है And he takes it to Jerusalem और वो उसको जेरूसलेम की ओर ले जाता for है everyone to see ताकि सब लोग देखें how the Lord God of hosts has given victory to his people. कि किस प्रकार से सेनाओं के परमेश्वर ने Hmm. उनको विजय दिया है। Hallelujah. Now Jesus, when he's taking the cross, यीशु जब अपने क्रूस को उठाकर ले जा रहे थे, where is he taking the cross? तो वो अपने क्रूस को कहाँ लेकर जा रहे थे? He's taking it up a hill. वो एक पहाड़ के ऊपर वो अपने क्रूस को लेकर जा रहे थे। What is the name of that hill? और उस पहाड़ का क्या नाम है? The name of that hill is Golgotha. उस पहाड़ का नाम है गलगथा। Hallelujah. हमने सब इसको गाने में गाया है, गोलगथा की पहाड़ी, गोलगथा के पहाड़ के ऊपर. And there are many paintings of that also. और उसकी बहुत सारे चित्र भी हैं। Now I remember an old painting. और मुझे याद आ रहा है एक बहुत पुराना चित्र, And it showed that on the hill, the cross of Jesus is there. और उसमें दिखाया गया कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ में यीशु का क्रूस है। यीशु का क्रूस है, उस पे यीशु मसीह हैं, उनके अगल बगल दो डकैत हैं, लेकिन उस पहाड़ में यीशु मसीह के क्रूस के नीचे वहां एक खोपड़ी बनाई हुई थी. So sometimes I felt तो कभी कभी मुझे लगा that was to add mysticism and sensation. कि वो बस इसलिए है ताकि और वो रोचक Interesting. बने, इंटरेस्टिंग बने। Interesting बने. But the fact is, लेकिन बात यह है David took Goliath's head to Jerusalem. कि दाऊद वो जो गोलियत है उसका सर वो यरूशलेम में लेके जाते हैं। And then he buried it outside of the city. और वो जा करके नगर के बाहर में उसको गाड़ देता है। Hallelujah. Because you could not bury inside the city. क्योंकि उसको वो नगर के अंदर में नहीं गाड़ It सकता। was unclean to be buried inside the city. वो सही नहीं था उसको नगर के अंदर में उसको गाड़ा जाए। Hallelujah. Where did Jesus take his cross? Outside the city. और यीशु अपने क्रूस को कहाँ लेकर के जाते? नगर से बाहर। Praise the Lord. To what hill? The name of the hill is Golgotha. और कौन सा पहाड़? वही पहाड़ी जिसका नाम गलगथा था। Where was Goliath from? और गोलियत वो कहाँ से था? He was from the city of Gath. वो गाद के नगर से था। Now you add all these facts together. और अब इन सारे विवरण को आप एक साथ ऐड करें। गोलियत से गोल आया, गाथ से गथा आया, गोलगथा, जहाँ हालेलुया। गोलियत दफन किया गया है। गाथ का गोलियत को जहाँ दफन किया गया वो गोलगथा। हालेलुया। गोलियत कौन है? हालेलुया। वो शैतान का वंश है। और प्रभु ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा
कि तुम्हारे बीच में और शैतान के वंश के बीच में मैं शत्रुता करूंगा। तुम उसके सर को कुचलोगे और वो तुम्हारे सर को कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। मतलब तुम उसके ऊपर होगे जब तुम उसकी सामर्थ को कुचलोगे और वो तुम्हारे नीचे होगा। परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता है। यीशु मसीह का क्रूस जब ऊपर था, उस पर से जब लहू बह रहा था, वो नीचे शैतान के वंश के, शैतान की सारी सेना के, उसकी सामर्थ को, उसकी योजनाओं को, उसकी शक्तियों को वो तबाह कर रहा था, वो नाश कर रहा था। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? हालेलुया। और जो यीशु मसीह क्रूस पे थे, उसी स्थान पे गोलियत जो शैतान की सामर्थ है उसको डस रही थी, लेकिन डसने में वो खुद नाश हो रही थी। हालेलुया। कितने को समझ में आया? वाओ। दैट इज व्हाई वी कैन ट्रस्ट ऑन गॉड्स वर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के हर एक कहे हुए वचन पर भरोसा कर द वर्ड सकते ऑफ हैं। गॉड टेल्स मी और प्रभु का वचन यह मुझसे कहता है दैट गॉड इज नॉट रैंडम। कि प्रभु जो है परमेश्वर ऐसे ही कोई बातों को नहीं कर देते। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आप अपने जीवन में अभी इस समय जहां हैं, जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी है, आपके लिए एक बड़ी महिमा है। प्रेज गॉड। वचन बताता है सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक बुलाए गए। हर एक बात, जैसे बहुत सारे टुकड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन हर एक टुकड़े का एक मतलब है, और जब वो साथ में जुड़ते हैं तो एक सुंदर पिक्चर बन के तैयार होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। आज जब आप यहां बैठे हुए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, आप ऐसे ही यहां पे नहीं बैठे हुए। प्रेज द लॉर्ड। God fulfills his words to the letter. परमेश्वर अपने कहे हुए हर एक शब्द को वो पूरा करता We है can trust on his word. और हम उसके वचनों पर भरोसा कर सकते His हैं। word is the most sure word of prophecy. और उसका जो वचन है वो भविष्यवाणी का सबसे सटीक वचन है। Now the most important thing, सबसे महत्वपूर्ण बात, you know, Goliath said, गोलियत कहता है I am the champion of my army कि मैं अपने सेना का चैंपियन हूँ and you are the champion of your army, David. और दाऊद तुम अपने सेना के चैंपियन हो। So if I defeat you, तो अगर मैं तुम्हें हरा दूं I will not fight your people. तो मैं तुम्हारे लोगों से उनका मुकाबला नहीं करूंगा, I will only fight with you मैं केवल तुमसे मुकाबला करूंगा and you will only fight with me. और तुम केवल मेरे साथ मुकाबला करोगे। But if I win, पर अगर मैं जीतता हूँ all my people will win. तो मेरे सारे लोग वो जीतेंगे They will all share in the victory. और वो जय में जो है वो भागीदारी होंगी। But if you win, David, लेकिन दाऊद अगर तुम जीतते हो all your people will win. तो तुम्हारे सारे लोग वो जीत And जाएंगे we will all will be under your power. और हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। हाँ, तुम्हारे सामर्थ के नीचे आ जाएंगे। Jesus is our champion. और यीशु हमारे चैंपियन हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is Hallelujah. our champion. यीशु हमारे चैंपियन हैं। The word of God tells us. और परमेश्वर का वचन यह कहता है, Praise the Lord. John, praise the Lord. Let's go to Hebrews chapter 12 verse 2. इब्रानियों की किताब 2:14 जाएंगे। We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. इसलिए जबकि लड़की मांस और लहू के भागी हैं, नहीं, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 2 पद, कि हम अपने आंखें यीशु मसीह की तरफ लगाए रखें जो हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। ये उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाला शब्द के जगह पे चैंपियन वर्ड का यूज किया गया है। हालेलुया। जीसस इज आवर चैंपियन।
यीशु हमारा चैंपियन He है, is the champion of our faith. वो हमारे विश्वास का चैंपियन है। When he won on that cross that day, और उस दिन जब उस क्रूस में उसने विजय प्राप्त किया, when he defeated death forever, उसने मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया, when he defeated the powers of darkness forever, उसने अंधकार की सारी शक्तियों को हमेशा के लिए हरा दिया, when he made a mockery of them in front of everyone. और उन्होंने मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। Hallelujah. It was not just Jesus who won. तो वो केवल यीशु ही नहीं था जो विजयी हुआ, We all won along with Jesus. हम सब यीशु के साथ विजयी We हुए, share in his victory. हम उनके विजय में वो हम भागीदार हैं। And he tells us today और वो आज हमसे कह रहे that the हैं powers of darkness are now under your authority. कि अंधकार की सारी शक्तियां अब तुम्हारे वश में हैं, We have authority over them in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से हम उनके ऊपर अधिकार रखते हैं। Let's give a mighty clap offering to him. He is परमेश्वर के लिए our तालियां champion. बजाएं। He is our champion. वो हमारा चैंपियन है। Hallelujah. In his victory we have won. उसके जय में हम सब जीतते हुए हैं। You have already won over all your situations. हम अपने हर एक परिस्थितियों में पहले से ही विजयी हैं। Hallelujah. मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम आ जाएंगे एक गीत के लिए। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद करें। वो विश्वास योग्य है, वो अपने हर एक वचन को पूरा करता है। उसकी जय में हमने जय पाई है, उसकी जीत में हम जीते हैं। आज आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर आप जयवंत हैं। इसलिए नहीं कि हमारी सामर्थ बड़ी है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उस जय को हमारे लिए स्थापित किया है। उस जय को क्लेम करें, उस विक्ट्री को क्लेम करें। आज जो सिचुएशन आपको मुश्किल लग रही है, उस सिचुएशन के ऊपर यीशु मसीह के लहू को क्लेम करें। हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं कि वो जय हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलेगी, वो सामर्थ आज हमारी जिंदगी में बहेगी। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, वो मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। हालेलुया। लेट्स सिंग। हालात बदल जाते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। जैसे इस गीत को गा रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर एक घोषणा के रूप में गाएं। यीशु तू हमारे लिए जयवंत हुआ, तू हमारा चैंपियन है, तू हमारा योद्धा है, तुझ में हम जयवंत हैं। को बजाते उसकी आराधना करें, अपनी आवाजों को ऊंचा उठा करके उसकी आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करें, उसको बोले प्रभु जब तू मेरे जीवन में अपने कदमों को रखेगा, जब तेरी आवाज मेरे जीवन में गूंजेगी, मेरी हर एक परिस्थिति बदल जाएगी, तुझ में मैं जयवंत होऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी हर एक परिस्थिति को उसके हाथों में सौंपे। कोड़ों से छले हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छले हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ,
की आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे छू ले, अपने अभिषेक से भर, अपनी आत्मा से भर, अपने सामर्थ्य से भर। प्रभु मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति तेरे सामने रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर वो अभिषेक जो दाऊद के ऊपर था, वो अभिषेक मेरे ऊपर उतर रहा है। की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते, सब मिलकर आराधना करें। मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, 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 तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, सब मिलकर हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, हे यीशु नासरी आज जुम्बश तू कर। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। राशे खे से तेरे लो वो शुकोरोलो, रेशे खेरले बैसे थे खेरले शेरले खेरलो शोरलो खोसे। हालेलुया। प्रभु आज तेरे लोगों की परिस्थितियां बदले, इस समय प्रभु तेरी सामर्थ्य इनके बीच में बहने पाए। आज परमेश्वर इस समय चिन्ह और चमत्कार होने पाए। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। प्रभु तेरे लोगों के सामने, तेरी उपस्थिति के सामने आज घुटनों को टेक दे। हर एक असंभव संभव हो जाए, हर एक असंभव संभव हो जाए। प्रभु इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज की जाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We give you glory Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज जुम्बश तू कर, सब मिलकर आराधना करें। यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, दर्द सामर्थ्य से, दर्द सामर्थ्य से, और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी। उसको पुकारे। आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हालेलुया। प्रभु जैसे दाऊद को तूने अभिषेक से भरा था, प्रभु आज अपने लोगों के ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेल। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन बताता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पे उड़ेलूंगा। हालेलुया। प्रभु आपने कहा है तेरे जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये प्रभु सपनों को देखेंगे। प्रभु अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेल, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उंडेल, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उंडेल। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी सामर्थ से प्रभु हम जयवंत होंगे। तेरे आत्मा के अभिषेक से हम जयवंत होंगे। हालेलुया। ना हम घोड़ों के ऊपर भरोसा करेंगे, ना रथों के ऊपर भरोसा करेंगे। हमारी जीत परमेश्वर तेरी ओर से आती है, हमारी जीत यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर।
उसका अभिषेक इस स्थान में बह रहा है। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। गढ़ ढह रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। रिसीव हिज अनॉइंटिंग नाउ। आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे, पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे, आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे। हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, सब मिलके उसको पुकारे। आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। दर्द सामर्थ से, दर्द सामर्थ से, और अभिषेक कर, हे यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हालेलुया। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी जय हो परमेश्वर, जो तूने उस क्रूस पर हमारे लिए स्थापित की है प्रभु। उस जय को यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं ठहराता हूँ प्रभु। तेरी जय में हम जयवंत हुए हैं, तेरी सामर्थ में हम बलवंत हुए हैं। हालेलुया। हर एक कमजोर कहे यीशु में मैं बलवान हूँ। हालेलुया। हर एक कमजोर कहे यीशु में मैं बलवान हूँ। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने परमेश्वर हमें अपने आप में शादमान किया है, तूने हमें अपने आप में आशीषित किया है। तेरी आशीषें हमारे ऊपर आकर के ठहरी हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें नाम लेकर के बुलाया है और तू कहता है कि हम तेरे हैं। तूने हमारे सर पे आदर और महिमा का मुकुट रखा है। तूने हमें प्रभु शत्रु और उसकी सभी योजनाओं के ऊपर, उसकी सभी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके सर को कुचलें और कोई भी बात हमें किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। आज यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में शत्रु के हर एक कार्य को हम यीशु के नाम से कुचलते हैं, हम यीशु के नाम से रौंदते हैं, उसकी योजनाओं को यीशु के नाम से हम कुचलते हैं। पवित्र आत्मा की आग से हम नाश करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारे हालेलुया, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में शत्रु के हर एक कार्य को इस समय मैं यीशु के नाम से रौंदता हूँ। हालेलुया। हर कोई प्रार्थना करे, हर कोई प्रार्थना करे, प्रभु का धन्यवाद करे, प्रभु को महिमा दे। प्रभु मैं शत्रु के हर एक कार्य को यीशु मसीह के नाम से रौंदता हूँ। उसकी हर एक योजना जो मेरे विरुद्ध रची जाती है, हर एक वो शब्द जो मेरे विरुद्ध बाण की तरह छोड़े गए हैं, उनकी सामर्थ को मैं यीशु के नाम से इस समय तोड़ता हूँ। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन बताता है कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध रचा जाता है वो उन्नति नहीं करेगा। कोई भी षड्यंत्र जो तुम्हारे विरुद्ध रचा जाता है वो उन्नति नहीं करेगा। राशे खेसे तेरे ले बेखेरो शोथोरो लो बोखोरो लो शेथे। Be free now in the name of Jesus. Be free now in the name of Jesus. Be free now in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अभिषेक को रिसीव करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु को बोले, प्रभु तेरा अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर आग की तरह उतरने पाए। तेरा अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जॉब के ऊपर, मेरे रिश्तों के ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक आग की तरह उतरने पाए। हर एक बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से टूटे। हर एक बंधन इस समय यीशु मसीह के नाम से टूटे। निराशा का बंधन, हालेलुया,
डर का बंधन, नाकामयाबी का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। अब से हालेलुया, तुम निराशा का सामना नहीं करोगे। मैं निराशा का सामना यीशु मसीह के नाम से नहीं करूंगा। हालेलुया, जय मेरा भाग है, जय मेरा भाग है। हर कोई प्रार्थना करे, जय मेरा भाग है। यीशु ने उस जय को मेरे लिए स्थापित किया है। जय मेरा भाग है। मैं जहां जाता हूं मैं जय को रिसीव करता हूं। मेरे जीवन के हर एक एरिया में मैं जय को रिसीव करता हूं। हालेलुया, आई क्लेम द विक्ट्री ऑफ जीसस इन माय लाइफ। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में जय को रिसीव करता हूं। हर एक अंधकार का बंधन, नाकामयाबी का बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं नाकामयाबी के बंधन को, फेलियर के साइकिल को यीशु के नाम से, हालेलुया, वो टूट रहा है, वो टूट रहा है। इट्स ब्रेकिंग नाउ, इट्स ब्रेकिंग नाउ, इट्स ब्रेकिंग नाउ, इट्स ब्रेकिंग नाउ। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। उसकी सामर्थ्य उतर रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। हालेलुया, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए दरवाजे, नए अवसर, नए आशीषों के रास्ते, हर एक वो रुकावट, हर एक वो पहाड़ जो कि तेरे लोगों की आशीषों को रोकता है, इस समय यीशु मसीह के नाम से हम उस पहाड़ को आज्ञा देते हैं, अपने स्थान से हट जा और सागर में जा गिर। अपने स्थान से हट जा और सागर में जा गिर। ए पहाड़, अपने स्थान से हट यीशु मसीह के नाम से, और मेरी आशीषों को रास्ता दे, मेरी आशीषों को रास्ता दे। हर कोई डिक्लेयर करना शुरू करे, मेरे परिवार की आशीषों को रास्ता दे, मेरे परिवार की आशीषों के रास्ते से हट हर एक रुकावट। लेट इट बी रिमूव्ड इन द नेम ऑफ जीसस नाउ, नाउ, नाउ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। वो आशीषें जो रुकी हुई हैं इस समय रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इस समय रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो जॉब की आशीष, हालेलुया, वो परिवार में संतानों की आशीष, हर वो प्रमोशन की आशीष, हालेलुया, वो हीलिंग की आशीष इस समय रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। यीशु, तेरे नाम में सारा अधिकार है, सारी शक्तियां, सारे सामर्थ प्रभु तेरे पांव के नीचे है। आज हम उस यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं, उस यीशु मसीह के नाम को घोषित करते हैं। उस यीशु के नाम में आज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में बड़े कार्य होने पाए, बड़े कार्य होने पाए। हालेलुया, स्वर्ग इस समय खुल जाए और स्वर्ग से प्रभु तेरे लोगों के जीवन के ऊपर तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा बरसने पाए, तेरा फेवर बरसने पाए, तेरी अनॉइंटिंग बरसने पाए। रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को, रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को, रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको दिखा रहा है उन आशीषों को जो वो आपके जीवन में रिलीज करने जा रहा है। प्रभु आपको दिखा रहा है, हालेलुया, उन आशीषों को। हालेलुया, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस बात को बता रहा है, कई लोग अपने फैमिली लाइफ में स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, कई लोग अपने फैमिली लाइफ में स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कई लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। परमेश्वर हालेलुया अवसरों को रिलीज कर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। फायर, 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 फायर। हालेलुया, पैर इस समय गर्म हो रहे हैं। धन्यवाद यीशु, ये गर्मी आपके ऊपर उतर रही है। राशेखे से थेरले बेशेखे लो शोदोरो बोसे। हालेलुया, कई सेव खाई में इस्तेमाल किए जाएंगे, सेव खाई में इस्तेमाल किए जाएंगे, सेव खाई में इस्तेमाल किए जाएंगे, सेव खाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। राशेखे से थेरलो बोशोखोरो सोतो। प्रभु का आत्मा कहता है, अपनी सामर्थ पे भरोसा ना करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार मत मांगो, क्योंकि हालेलुया हमारी जय वो रथों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। हमारी जय यहोवा परमेश्वर की सामर्थ से आती है, उसके अभिषेक से आती है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसका नाम बड़ा है, वो महान परमेश्वर है। तुम्हारी जय बड़ी होगी, तुम्हारी ब्लेसिंग्स बड़ी होगी, तुम्हारी महिमा बड़ी होगी। हालेलुया, धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु इसमें डर के बंधन को तोड़ रहा है, डर का बंधन टूट रहा है। हालेलुया, डर का बंधन इस समय टूट रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। I break the power of fear in this place in the name of Jesus. I break the power of fear now, out from this place,
out from this place, out from this place, out from this place. No more fear, no more fear. Hallelujah. डर की आत्मा इस स्थान को छोड़ के निकल जा, निकल जा, out, out, out. हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तूने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परंतु तूने हमें सामर्थ्य, प्रेम और शांति की आत्मा दी है. तूने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है. वो सामर्थ्य मैं तेरे लोगों के ऊपर घोषित करता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. तेरे प्रेम को प्रभु अपने लोगों के ऊपर उंडेल दे, अपनी शांति को अपने लोगों के ऊपर उंडेल दे. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु. हालेलुया. डर का बंधन टूट रहा है, डर का बंधन टूट रहा है. धन्यवाद प्रभु. यीशु, यीशु, यीशु. तू सब कुछ है प्रभु, तू सब कुछ है. हम तुझ में उस जय को रिसीव करते हैं जो हमारे लिए ठहराई गई है. हालेलुया. प्रभु का आत्मा कहता है तुम जो स्थान में हो तुम ब्लेस्ड हो, तुम ब्लेस्ड हो. आने वाले समय में गवाहियों पे गवाहियां आएंगी, तुम्हारे जीवन से गवाहियों पे गवाहियां आएंगी. हालेलुया. रिसीव करें अपने ब्रेक थ्रू को इस समय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी टेस्टिमनीज के लिए, उन सभी छुटकारों के लिए, उन सभी ब्रेक थ्रूज के लिए जो होने वाले हैं और इस समय हो रहे हैं. हालेलुया. हर एक चंगाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक विक्ट्री के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं. ग्लोरी, 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 ग्लोरी. प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु. उस क्रूस की सामर्थ्य को हम इस कलीसिया के ऊपर डिक्लेयर करते, उस क्रूस की सामर्थ्य से जय को हम डिक्लेयर करते. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु.